Hello and welcome to Zoom. This is Kushumika, and today we have some very special guests with us. We have the cast of Ek Diwani Ki Diwaniyat. Joining me today are Sonam Bajwa and Harshvardhan Rani. Welcome to Zoom. Thank you, Kushmika. First of all, congratulations. Thank you. Tell us a bit about the tour that you are in right now and how's it going? I just felt that people went out, bought a ticket. When they went out of their house, they had to travel. They must be in the sun. They must have been sweating. They were standing in a line. I saw some photo of people standing in a line. It was an iconic photo of my life. So, wow. Yeah. Yes. Yeah, I know which yeah, one you're yeah, talking about. Yes. Yeah, what do you want? So, जब वो खड़े होंगे तो उन्होंने पसीना बहाया होगा, धक्के खाए होंगे इधर उधर से. तो आई फेल्ट अगर मुझे थैंक यू बोलना है तो मुझे भी ये एलिमेंट्स को टच करना चाहिए. Okay. I should be sweating. It's a very silly thought, but I felt I should be sweating while I'm thanking them. I don't know how else to put this, but this is what I felt. The first thought that came to me was, I have to be on the road. क्योंकि मैंने शुरुआत में सड़क पे अपनी वैन में स्टिकर लगाते हुए लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ इस बार टिकट खरीद लीजिए. सो इफ़ दैट इज़ that's how I like to interact with people on ground. So that's उसको नाम लोग road tour, road show, road you can call it anything, but for me it is saying thank you in person, where I can touch as many people, emotionally or physically, just shake hand once. So that's my way of showing gratitude, and it's very gracious of Sonam to join us because see, it's not about a guy and a girl, but it's about the physical aspect of it. Okay. But she has been such a sport, and you guys will be surprised. जो ये princess जैसा ये जो वो है demeanor है, aura है, she let go of all the comforts and went into the public and went into thanking them. सबके साथ कंधे से कंधा मिला के, and that's very gracious of her. What do you It's want to actually add? really kind of him to, have all of us experience something like that. मैंने कभी ऐसे नहीं किया था, and it's genuinely overwhelming to see people love him like that. People, getting so excited to get a glimpse of him, and it's just is amazing. It is amazing to see people responding to our character names, to the dialogues of the movie, to the songs when it's playing. It's so amazing, and I'm just so thankful to God, to him, to everybody in the team that I could actually witness that in person. Absolutely. And I want to know this from both of you. Tell me, what are the characteristics of your role that you liked and kind of struck a chord in your mind and you said yes? What are those for you? For me, the first thing that I liked about Ada was that she is so determined. She has her own mind. She's very courageous. She's imperfect for sure. So, yeah, I think these are the things that stood out the most for me in her character. And I kind of resonated with that she's that. Absolutely. To add to what she said, my sister Rohini Rani, I found out after this film release that she is Sonam Bajwa / Ada Randhawa inside. Okay. मुझे नहीं पता था उसके बारे में. और उसने जिस तरह तारीफ करी है, how Sonam has done the role, and how when she said no, my sister has felt so proud of how she has done it, and that's the day I was a little scared. Okay, मेरे घर में भी एक सोनम बाजवा छोटा version. But for me, what struck the chord with विक्रमादित्य भोसले would be ना सुनने की आदत और ना सुनने पे गिव अप ना करना. क्योंकि मेरी लाइफ की सोनम बाजवा है मेरा करियर, अदा रंधावा मेरा करियर है, जो ना ही बोलता, ना बोलने में उसको मतलब उसका भी अपना रीजनिंग है और कोई गलत नहीं है. वो उनके पास उनका रीज़न है, मेरे पास प्यार जताने का रीज़न है. तो इट इज़ अ नाइस टकराव ऑफ टू जेन्युइन परसेप्शंस, टू जेन्युइन डिज़ायर्स, नीड्स, गोल्स, ड्रीम्स. तो मुझे वो बड़ा रेजोनेट हुआ कि मुझे ना सुन के
ट्राई करते रहने में बहुत मज़ा आता है पर्सनली. You could connect with the character. जी, a lot, because हर्ष को भी उसमें मज़ा आता है, विक्रमादित्य भी उसमें शिद्दत से करता था वो चीज़, तो I felt that was connecting for me. Right, tell me one scene that kind of tested you emotionally. There are multiple scenes, but I want to know this from both of you. Mention one scene. So with me actually एक होता है tested me as a person, हाँ. एक हुआ tested me as an actor, Okay. right? Fair enough, right. तो वो दोनों अलग अलग दौरान अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीन के हुआ. हाँ. I think I was really tested as an actor. वो जो सीन है जब वो तस्वीरें फेंक के मुंह पे मार रही है. हाँ. I was not motivated to be that angry actually. But of course उसका सीन का वो डिमांड है, डायरेक्टर का वो विजन है और एक्टर का काम है उस चीज़ को डिलीवर करना. Right. और मुझे याद है पहली बार तो वो मुझसे हो ही नहीं रहा था. और and as an actor you feel so bad कि पूरा सेट वेट कर रहा है और like आप फिगर कर रहे हो और आप कुछ तो माइंड में कन्विंस नहीं हो, आपके खुद का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ही केम, ही ट्राई टू, दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम ही एवर स्पोक टू मी फॉर अ सीन. और आई थिंक वो हमारा थर्ड डे था शूट का, आई क्लियरली रिमेंबर. आई थिंक उससे पहले तो only it was like okay, hi, hello, how are you. तो Harsh came up to me and he tried to he was trying to help me because he saw I was struggling there. तो वो था और उस दिन वो लेट हो गया, फिर हुआ नहीं. फिर उसके बाद so that day I really struggled as an actor because my inner thoughts of Sonam was conflicting so much with Adaz and I was just not convinced and I was not able to do that. But yeah, thank God that another day I was given a chance to redo that and then we did it. So yeah, I think that is As one. an actor. As an actor I was. मुझे तो लग रहा है कि मैं पैदा ही हुआ था इस तरह की चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. मे बी नॉट जस्ट दिस रोल बट टू लुक एट अ गर्ल विथ ऑल माई हार्ट. आई वॉज बॉर्न टू लुक एट अ गर्ल विथ ऑल माई ब्लड एंड बोन्स एंड फ्लैश विद एवरीथिंग. अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोलना है मुझे पता नहीं, बट जस्ट टू लुक एट अ गर्ल विथ everything that I have, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. I really enjoy this and to just So you don't want to mention any particular scene that way? Okay. this is something which I really felt I was Born to do. born to do. Yeah, of course. Okay. So tell me, did you ever feel, did you have sort of fear of being typecast, this emotional, obsessive or lover boy? What kind of thoughts did you have regarding playing such characters? Just explain what you feel about it, playing such roles. Oh, I would love to be typecast. Yeah. I was born to be typecast. Who wouldn't love to be typecasted as president of Ashik community? Who wouldn't? Such a privilege and I'm so happy for him actually. उनका नहीं पता लेकिन मैं तो बहुत enjoy कर रही हूँ that इनको हर्ष को ये title मिला है और मुझे तो बहुत खुशी है. Absolutely. And I want to ask this to you. There is often actresses being told that they are part of the film as just a flower pot role, but we are seeing you are evolving. You are playing such layered characters. So, what do you want to talk about the evolution that happened in terms of actresses' role in the industry that you have witnessed? मैं तो अभी बहुत नई हूँ हिंदी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी बात करने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी खुद कदम रख रही हूँ और मैं वेट कर रही थी कि मुझे ऐसा रोल मिले जहाँ पर मैं सिवाय गानों में डांस और ग्लैमरस लगने के अलावा भी कुछ कर सकूं. तो वो इस फिल्म में हुआ. गाने भी मुझे मिले डांस करने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ बिकॉज दोज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट सॉन्ग्स. चाहे वो बोल कफारा हो या दिल दिल, आई एम वेरी हैप्पी. और इस बात के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे थोड़ा परफॉर्म करने का भी मौका मिला. ऐसा लिखा गया है, इट वाज अ ऑथर बैक रोल. सो थैंक्स टू मिलाप मुश्ताक जिन्होंने ये लिखा और फिर सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ.
यहाँ पर तो ऑफ कोर्स एक्ट्रेसेस लाइक आलिया भट्ट, दीपिका, कंगना, उन सब ने ऐसी फिल्म्स की हैं जो कि कमर्शियली भी सक्सेसफुल हुई हैं और एंटरटेन भी किया है और बॉक्स ऑफिस पे पैसा भी कमाया है। तो और विद्या मैम ऑल्सो, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। मैं बहुत नई हूँ इसके बारे में कहने के लिए, लेकिन तापसी ऑल्सो येस। तो यहाँ पर भी ऑल द एक्ट्रेसेस आर डूइंग सो वेल। और मैं जो कमर्शियल भी काम कर रही है, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हर फीमेल एक्टर ये डिज़ायर करती है कि कुछ तो मुझे भी ऐसा फील होना कि मैं भी ज़रूरी थी फिल्म के लिए। ये एक बहुत ही बेसिक थॉट है। आप किसी ऑफिस में भी काम करेंगे ना, अगर आपका काम अगर ऐसा है कि आप कब आए कब गए वो किसी को फील ही नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। So very often female actors go through this, and I have gone through this, that where you're really part of a film, you're not really part of a film, it has made no difference, you know. So तो दिल तो सबका करता है कि आपको ऐसे रोल्स मिलें, और यहाँ पर भी काफ़ी टाइम से मैं तो देख रही हूँ कि ऐसे रोल्स हैं और धीरे धीरे और भी आ रहे हैं। अब जैसे इसमें जो मैंने पहले फिल्में की हैं और हिंदी में, और अभी जो मैं इसमें कर रही हूँ, बहुत फ़र्क है। सो मुझे भी थोड़े टाइम बाद ऐसा मौका मिला, बट इट्स चेंजिंग। बट या द परसेंटेज आई वुड से इज़ वे लेसर कंपेयर टू द यूजुअल फिल्म्स, बट इट इज़ देयर। राइट, यू नो, हम सब ने एक बहुत रेपिलियस साइड देखा आपकी मूवी में, दैट यू आर नॉट ओके विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आदित्य। बट टेल मी, इन रियल लाइफ, व्हाट आर द फीचर्स that an ideal partner should have? Harsh has gone in a meditative space. Last question. I would love to be also typecast as a profitable hero. Okay. With good box office numbers. Yes. But tell me about this one. Qualities in a partner. Yeah. Clean eyes. Clean, beautiful eyes. प्रेफरेबली ब्लू ग्रीन। सुबह सुबह बहुत सुंदर लगनी चाहिए आपको। बात करने के लिए बहुत मन करना चाहिए आपका बार बार। जस्ट हर प्रेजेंस विदाउट इवन टॉकिंग शुड मेक यू फील सम ठंडा केयर। हाँ, अब ये सारे एक एक वर्ड में आप कन्वर्ट करना, मुझे वो आता नहीं है, बट दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ गुड कंपेनियन। And Sonam? मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू जब होगा ना, तब आप अभी द लिस्ट इज नॉट रेडी। Anything, you know, just a few things that. Very basic, very normal, honesty, you know, and I think to me, humility is very attractive to me. Right. So that should be one of the qualities. Yeah, and then the rest of the things, he should be obsessed with me. No, I'm just saying that in a fun way, but Tell me a bit about the shooting experience. How is it for you and for you? ब्लेसिंग जैसा था, क्योंकि ये फिल्म ना कोई इंडस्ट्री में ना वॉज नॉट रियली सपोर्टिंग दिस फिल्म इनिशियली, Right. फॉर राइट रीजंस, नो कंप्लेंट्स। ये बिजनेस है, इसमें जब तक रिटर्न्स नहीं दिखता है तो इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैं जब ये बोल रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो सेइंग दिस, इसको आप अलग से काट दोगे इतना पार्ट तो वो गलत साउंड करेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको No, 10 सेकेंड में मत काटना। So when this film was being made, everyone, lot of filmmakers said कि वो तो पहली वाली इसकी तुक्का लग गई थी, वो फेब में जो फिल्म आई थी जिसके टिकट लोगों ने खरीदे, सनम तेरी कसम। तो काफ़ी मुश्किल था इस फिल्म का to take off. And it was really, क्योंकि सामने बैठी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, it was really gracious of step one that Sonam to step in, ठीक है। Step two was कि अंशुल गर्ग was that one man, पहला आदमी, not one man, the first man who signed me after सनम तेरी कसम re-release. So that shows the kind of spine he has. That shows the kind of foresight he has, दूर की सोचना। That shows कि कितने वो कान के कच्चे इंसान नहीं है, कि होता है ना लोग सुन लेते हैं इधर से कुछ। That shows कि उनका जो विजन है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। So experience बहुत ब्लेसिंग वाला था मेरे लिए।
पर्सनली, क्योंकि किसी ने गैम्बल खेला था इस फिल्म पे, अंशुल गर्ग ने, उनकी टीम ने, राघव शर्मा, दिनेश जैन जी। तो इन लोगों ने ये जो गैम्बल खेला मेरे लिए बस एक ही था कि यार ये जो इनकी शान है ना, ये आदमी जो शान से चलता है, शान से रहता है, इसकी शान में कमी ना आ जाए। मेरा रोज़ बस भगवान से यही प्रेयर थी कि इस इंसान की शान में कमी ना आ जाए। सो दैट आई फील, आई एम राघव शर्मा का नाम लिए इधर ही आपके सामने, दैट्स द गाय आई एम टॉकिंग। सो इन लोगों का जो दे हैड ऑलरेडी मेड सो मनी, दे वर ऑलरेडी सेटल्ड, बट आई वांट टू मेक श्योर दे शुड फील proud and come out smiling. Okay. So that was my only ask from God, and I got lucky that Sonam Bajwa stepped in, and I don't have to be politically correct here, but I can promise you nobody in this country would have played this role better than Sonam Bajwa. Such a compliment. And yeah, you did really very well. very kind. He's No, you were really well, and I loved both of you. Very much intense, and I could feel you two were into the characters. It felt really, really real while watching it. thank you, that means a No, lot. no, you are not. फालतू तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ। No, Correct. not at all. You tell me about the shooting experience. How is it? It was wonderful. It was, see, when I was offered this, when I was narrated this, I already was so excited that wow, मुझे कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा. We shot it in, अगर मैं वैसे बात करूँ तो because of course ये ऐसे कोई बहुत बड़े बजट में नहीं हुई. हम लोगों ने 31 days में फिल्म फिनिश की with 5 songs in it. It was hectic, but it was lot of long hours of shoot. But having said that, और ऐसा नहीं है कि हर्ष यहाँ पर है इसलिए मैं कह रही हूँ, he made it like that working experience, which was physically very tiring and exhausting, into a very pleasant work experience for me, because he was so supportive. And not too many male actors, मुझे नहीं पता क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हीरोज़ जो हैं वो उनको बाद का कॉल टाइम दिया जाता है. एक तो फीमेल एक्टर्स को थोड़ा टाइम भी लगता है रेडी होने के लिए, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स विदाउट इवन लाइक कन्विंस करना तो बहुत दूर की बात है. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट हर्ष कि हर्ष विल यू कम अ लिटिल अर्ली टुमारो बिफोर मी, आपका शॉट पहले लगा दें तो आप प्लीज़ आ जाएंगे. ही वुड ऑलवेज से येस. And I don't know too many male actors who would do that. Very, very few. I've not seen more than 1 or 2 who would actually agree. Because everybody loves their sleep. Everybody loves to be comfortable. But he genuinely did way more than he was supposed to. So he made that whole environment, the vibe on set, the work environment so healthy and so positive. दैट मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी बात थी. तो आपको फिर मज़ा आता है काम करके. और एक्टर तो ऑफकोर्स वो इतने अच्छे हैं, तो मुझे बहुत सीखने को भी मिला. उन्होंने मेरे काम में मुझे बहुत हेल्प भी की. सो फॉर मी दैट पार्ट वॉज आउटस्टैंडिंग. And so I did that entire film looking forward to each scene that I had with him, and it was fabulous. Right. Tell us a bit about any memorable anecdote, a BTS that you are going to remember. People bought tickets. That's the most memorable thing, I can promise you, for an actor. I always heard people saying कि we had a lot of fun on the set. मुझे वो interviews कभी समझ ही नहीं आते, because I always felt कि आप fun करने थोड़ी पिकनिक थोड़ी था. So I always feel कि आप set पे गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, खून निकल रहा है, that's okay. But अगर लोग टिकट खरीदें तो ये इंडस्ट्री आगे चलेगी. हम जैसे बहुत सारे एक्टर्स आएंगे. फ़न तो आपने स्कूल में, कॉलेज में कर लिया, सेट पे आके खून बहाइए. एंड अगर लोग टिकट खरीद लें, वो सबसे मेमोरेबल, मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट यही है कि फेब में लोगों ने टिकट खरीदी. फिर मैंने इसके लिए अपनी वैन में स्टिकर चिपका और फिर मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ भाई 9 साल मत लगाना. इस बार एक ही साल में 2 बार उन्होंने टिकट खरीद ली. इससे मेमोरेबल साल मेरी लाइफ में कोई रहा ही नहीं है. Absolutely. And what do you want to say about it? Yeah, I absolutely agree to what he's saying. Right. The film also clashed at the box office with another film. So when you first heard about it, what was your initial reactions?
My initial reaction is that the whole country should finally stop using this one word that we all are obsessed with for the last 6-7 years, nepotism. 2025 में प्लीज़ ख़त्म कर देते हैं इस वर्ड को, क्योंकि आप लोगों ने इसे ख़त्म कर दिया है. See, I am not making some random story. एक हफ्ते पहले का देखिए, रिलीज डेट दिवाली, 2 आउटसाइडर की फिल्म रिलीज़ हुई. आज मंडे को दोनों का कलेक्शन सेम आया. इसका मतलब क्या है कि ऑडियंस ने दोनों को सेम प्यार दे दिया है. तो कहाँ है फिर मतलब ये वर्ड मुझे बोलने में भी अब थक गया हूँ मैं. किधर है? इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़. आलस है तो ये वर्ड यूज़ कर दो, नेपोटिज्म. काम करने का प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो वर्ड यूज़ कर दो. हिम्मत नहीं करना चाह रहे हो तो वर्ड यूज़ कर दो. बहाना मारना, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है, बहाना मार देना है, वर्ड यूज़ कर दो. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, कोई आसपास भी ये वर्ड यूज़ करे ना, धीरे से उठो स्माइल करते हुए और बोलो कि मुझे पानी पीने जा रहा हूँ, वहाँ से निकल जाओ. डोंट इंडल्ज इन दिस कॉन्वर्जेशन एनी मोर, क्योंकि थक गए भाई. ये वर्ड बहुत ओवर यूज़ हो गया है और उसके साथ कोई एग्जाम्पल बचा नहीं है. टॉप 10 में से 7 एक्टर्स बाहर से आए. तो वेयर इज़ द प्रूफ? शो मी द डेटा. दिवाली पे 2 आउटसाइडर्स की फिल्म आ रही है, वेयर इज़ द डेटा? तो हाउ कैन यू कीप यूजिंग दिस वर्ड? इट्स लाइक यूजिंग ट्रैफिक एज एन एग्जाम्पल कि यार बाहर बहुत ट्रैफिक था. ये तो आपकी गलती है, जल्दी निकलिए ना घर से. सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. लेट्स स्टॉप फोकसिंग ऑन कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग. और पॉडकास्ट थोड़ा कम करो, क्योंकि उसमें क्या है ना, लाइक्स नहीं आते जब तक आप कंप्लेन नहीं करते. तो इसलिए मैं कभी पॉडकास्ट ही नहीं करता. आज तक आप यूट्यूब पे ढूंढ लेना, माइक लगा के मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे तब तक लोगों को मज़ा ही नहीं आता. मैं बोरिंग इंटरव्यू देना नहीं चाहता. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड. योर सो उसमें ना रस बहुत है, जूसी है, मसालेदार वर्ड है. तो वो एक एक्सक्यूज़ है और कुछ भी नहीं है. Can I just ask you one thing, which you say? Did you feel that you have been here for a very long time? So do you feel that it ever existed and now it's not there, and or you feel that it was never there in the industry? It just people use it as an excuse. When I entered here, the top actor was Mr. Shahrukh Khan, जो बाहर से है. तो मुझे नहीं पता, ये तो वो होता है कि एक जैसे कीटो डाइट होती है, फेमस डाइट बन गई, वैसे ही वर्ड आ गया, सबको पसंद आ गया एक्टर्स को ना. और क्या है, अपने घर में बताना पड़ेगा ना. मम्मी डैडी कह रहे हैं कि बेटा तुम तो पार्टी करते दिख रहे हो, काम तो कर नहीं रहे. तो मम्मी डैडी को बोलते हो मम्मी यार नेपोटिज्म चल रहा है. तो क्या वो लोग अपने आपस में पड़ोसियों को बोलेंगे कोई नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ पे, तो इसलिए मेरे बेटे को काम नहीं मिल रहा. तो गाइज प्लीज़ आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, बी persistent, be consistent, please be disciplined, and stop using these fancy words. Right. And Sonam, anything you want to say about that? Because you are also venturing into Bollywood, you are working here, so how is your experience? साल में 4 पिक्चर करती हैं, वो क्या बोलेंगे ना फिर. 4 नहीं, सॉरी 6-7. हिंदी फिल्म करने मुझे कितना टाइम लगा है? टाइम आपने लगाया, लगा नहीं, हर साल वापस आ रहे थे आपको. मुझे भी यही लगता है. अब हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. एंड ही इज़ पुट इट वेरी वेरी नाइसली दैट उसका ना कभी आपके पास एक्सक्यूज़ होना चाहिए और आपको मेहनत करनी ही है. नो मैटर यू हैव समवन सपोर्ट, यू डोंट हैव समवन सपोर्ट. तो आई थिंक मेरी जर्नी भी आई कैन से दैट लाइक यू नो आई हैव nobody from my family who ever worked in movies. My mom's a teacher, my dad was a teacher. तो फिल्मों में मैं भी गई, वहाँ काम किया, वहाँ इतने साल काम किया, फिर यहाँ पर काम मिला, उसके भी कितना टाइम. एंड देन ऑफकोर्स आई डू बिलीव दैट you're talented, sure, thank God for it. You are good looking, you look good, you think you know you're meant to be in front of the camera, thank God for it. But you have to work really really hard and be consistent to finally be where you are. I just want to add one last thing is, अगर आपको लगे कि यार ये तो बस बोल दिया है, so I'll just give you a small data. Let's not count जॉन इब्राहिम सर, शाहरुख सर, अक्षय कुमार सर, राजकुमार राव, विद्युत जामवाल, कार्तिक आर्यन. इनको तो ये तो बड़े लेवल पे ऑलरेडी जा चुके हैं जो बाहर से. नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, इरफान खान सर,
लिस्ट तो बहुत लंबी है, ठीक है। पंकज त्रिपाठी जी, इस साल आपकी आंखों के सामने राघव बाहर से आया है, एब्सोल्युटली। भुवन बाम बाहर से आया है, रोहित सराफ बाहर से आया है, लक्ष्य लालवानी बाहर से आया है। मेरी 2 पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पे चली हैं, मैं बाहर से आया हूँ। तो गाइस थक जाओ ये वर्ड यूज़ करके, नेपोटिज्म। प्लीज़ गिव अप कर दो ये वर्ड ओवर यूज़ करना। आपने तो इन सबको चलाया है। राघव क्या काम कर रहा है, भुवन बाम क्या काम कर रहा है, लक्ष्य ने क्या काम किया है, रोहित सराफ ने इतना अच्छा काम किया है। सो यू गाइज आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी। फिर क्यों इस वर्ड को लेके इसको बड़ा पीस दिया है? मतलब अब प्लीज़ कसम खा लो 2026 में कोई ये वर्ड यूज़ नहीं करेगा। Absolutely. This is a very emotionally charged film, and while shooting for such films, it takes lots of preparation. You are in that character. So tell us a bit about your character switch process. Like, what do you do? Or does it take a mental toll on you also? How is the process for you, the acting process for both of you? So I usually make a little diary for all my films. This is my diary for Divaniyat. And I kind of write notes about what is his childhood like, अकेले में कैसा रहता है. I write some letters to other characters. I write कि what are his motivations, किस चीज़ से obsess करता है, अपने दोस्तों के बीच में कैसा रहता है, पेरेंट्स के सामने कैसा रहता है. I try to draw graphs कि what makes him feel good, what makes him happy, how was his childhood is something I really focus on. I really obsess with that. Then I make a graph कि वो कैसा कहाँ जा रहा है फिल्म में. एंड देन आई सी कि इन हिज एक्शंस वेयर इज ही गोइंग, बट इमोशनली वेयर इज ही गोइंग. सो कई बार फ्लिप होता है कि एक्शन में आपने कुछ कर दिया लेकिन इमोशनली आप या तो उसके उल्टे हो गए ठीक, या तो ठीक उसका जो अगर आप एक्शन में गिर गए तो इमोशनली आप ऊपर चले जाते हैं. सो आई ट्राई माई होमवर्क. आई कोलैबोरेट विथ माई राइटर्स लाइक ऑन दिस वन, मुश्ताक शेख जी एंड मिलाप जवेरी सर. दोनों के साथ मैंने परमिशन ली उनसे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है. आप किसी की प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे उनको, यू नीड टू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल. सो दैट वाज माई प्रोसेस. बाकी मैंने 16 साल अपने पिताजी को स्टडी किया है to play Dil Toota Aashik. Sonam? Yes, I mean, I have not made notes as good as Harsh's, but I have tried, and I, of course, made a backstory, how she is after talking to the writer, director, and जब मैं लेकिन एक बार सेट पे उनका सुनती हूँ और फिर सीन में जो उस मोमेंट पे आई ट्राई टू बी देयर, I really try, and I try to also listen to the director and then be in the moment and experience what happens. और कभी कभार yes, कुछ scenes में ऐसा होता है कि you do feel the weight of certain emotions even after shoot. I would say that वो होता है, वो हुआ भी है. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली While doing it. क्या, क्योंकि एज एन एक्टर ये तो मेरा शुरू से ही डिज़ायर था कि मुझे ऐसा कुछ जॉनरा में काम करने का मौका मिले जहाँ इंटेंस इमोशंस आप फील कर सकते हैं, आप पोर इन कर सकते हैं, दूसरे एक्टर से भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ दैट एंड इट हैपेंड हियर. एंड सो मज़ा आता है उसमें. कुछ ऐसा कोई बहुत सैड होने वाली बात नहीं होती कि अरे मैं तो इससे अब मुझे ऐसा फील हो रहा है. हाँ, तो आपने इट्स सच अ प्रिविलेज टू एक्चुअली experience some really honest emotions in the middle of a scene, and that's the beauty of this profession and this art. तो बहुत कम स्क्रिप्ट्स में ऐसा मौका होता है और मेरे लिए तो pretty much ये जॉनरा पहली बार ही है, तो मज़ा आया. कुछ सीन्स में ऐसा हुआ भी अगर हुआ है, बट आई एन्जॉय दैट होल प्रोसेस ऑफ फीलिंग इट. एंड यू आपके माइंड में कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक भी वो सीन चलता है, वो इमोशंस को आप फील करते हैं. बट आई ट्रूली एन्जॉय दैट. But before letting you go, can we have one dialogue from each of you for our audience? मैं तो अपने करियर को ही कहूँगा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता. और मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा. कि आज तक तूने सिर्फ एक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू एक औरत की सनक देखेगा. Thank you. Thank you so so much. much for the interview.